Hello everybody or welcome back to my channel. I am Achal and today in this video we are going to discuss 5 most important topics from Pride and Prejudice. So you all are from first years who have clicked on this video and I know tomorrow is your exam. So don't get panic and I know it's the very first time you will give a college examination, but trust me, it is not that hard. It is going to be easy. And the most important thing is to learn the strategy that how to deal with the exam. Like you have this novel Pride and Prejudice. आपने I am assuming कि आपने इस नॉवल की समरी तो बहुत बार देख ली होगी कि what story it is telling, और बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने नॉवल भी पूरा पढ़ लिया होगा. But this video is not going to be a summary or what the text is saying, but I will be discussing the 5 most important thing which is very important, जिस पे आप नज़र डालो और देखो कि these are the things which can be asked in the questions or even you can include in your long answers. So the very first thing the first topic which is important in Pride and Prejudice is you just do not need to see it as a just novel which is telling a story, the love story of Elizabeth and Mr. Darcy. No, not like that. But you have to be little that extra thinking kind where you will be seeing things from different perspective and very deeply. So जो पहला है जेन ऑस्टन, आपको एक इंट्रोडक्शन देख लेना चाहिए जेन ऑस्टन का, like who was she and how her writing was. तो जो पहला टॉपिक है प्राइड एंड प्रेजुडिस का विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज थीम ऑफ मैरिज इन प्राइड एंड प्रेजुडिस. सो इफ़ यू हैव रेड अ नॉवल यू मस्ट बी नोइंग कि किस तरह से इस नॉवल में मैरिज का जिक्र और एवरीथिंग इज काइंड डिपेंडेंट ऑन दिस मैरिज की व्हाट इज़ दिस, और इसी पे बात हो रही है. तो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू मी. द सेकेंड टॉपिक इज कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ Elizabeth Bennet, that how throughout the novel Elizabeth changed her character and there is a development in her character. Now the third important topic would be role of class and social status in the novel. The fourth would be the use of irony in Pride and Prejudice, and the fifth would be importance of first impression in Pride and Prejudice. Now let me delve deeply into it. I will be not telling you the whole thing, but मैं ना एक आपको point of view दे दूंगी कि इस चीज़ में what you can include. ओके सो हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से जो कि है थीम्स ऑफ मैरिज इन प्राइड एंड प्रेजुडिस. सो लेट्स रीड इट आउट कि मैरिज इज द सेंट्रल थीम ऑफ जेन ऑस्टन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस. वी आर वेरी अवेयर ऑफ दिस थिंग. तो नॉवेल के वर्ल्ड में मैरिज इज नॉट जस्ट अबाउट लव एंड कंपेनियनशिप बट ऑल्सो अबाउट सोशल स्टेटस. जैसे कि पिछला ही वीडियो मैंने डाला था जिसमें वी हैव सीन कि ए एन कॉल ने नॉवेल के बारे में क्या बताया है. वहां भी इन्होंने बताया है कि किस तरह से नॉवेल हैज इवॉल्व्ड, और नॉवेल केवल इंडिविजुअल प्लेन नहीं बल्कि सोसाइटल प्लेन पे भी काम करता है. मतलब थ्रू द कैरेक्टर नॉवेल wants to let us know so many things about society of that time or era of that time. So ऑस्टिन का ये जो नॉवेल है इट्स नॉट जस्ट अबाउट लव एंड कंपेनियनशिप. केवल मैरिज इट्स नॉट अबाउट जस्ट लव एंड कंपेनियनशिप बट इट्स अबाउट सोशल स्टेटस, इट्स अबाउट फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इट्स अबाउट पर्सनल हैप्पीनेस. ठीक है, 3 चीज़ों का जिक्र है. नाउ ऑस्टिन ने क्या करा है अपने नॉवल में डिफरेंट कैरेक्टर्स का यूज करा है एंड थ्रू दैट सी इज प्रोवाइडिंग अस अ एक्सप्लोरेशन ऑफ डाइवर्स रीजन फॉर मैरिज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ दोज चॉइसेस. You get it? Like what Austen wants to let us know कि उस टाइम पे उनके टाइम पीरियड पे जो मैरिज है उसको कैसे व्यू करा जाता था एंड आफ्टर मैरिज what was the consequences of those choices. The ideal marriage in the novel is represented by Elizabeth Bennet and Mr. Darcy. तो आपने पढ़ लिया होगा टेक्स्ट में, एंड आइडियल मैरिज इसी को रिप्रेजेंट करा गया है, द मैरिज ऑफ Elizabeth Bennet एंड Darcy. क्योंकि जो फर्स्ट मैरिज का डिस्कशन हुआ है वो इन दोनों का ही है. एंड वाई इट इज आइडियल? इट इज बिकॉज their relationship begins with misunderstanding and conflict. At the very starting, their relationship begins with misunderstanding and conflict as Darcy's pride and Elizabeth's prejudice create a barrier between them. However, both characters undergo personal growth and Darcy learns humility and respect while Elizabeth learns to overcome her prejudice and acknowledge her own flaws. तो देखो जो पहले मैरिज का डिस्कशन ऑस्टिन ने किया है वो क्या है एलिजाबेथ और मिस्टर डार्सी के मैरिज को, और इसमें ये बताया है कि ऐसा नहीं था कि बिल्कुल सब कुछ स्टार्टिंग से ही इन दोनों के मैरिज के बीच में अच्छा था. बिल्कुल नहीं, दोनों की चॉइसेस बिल्कुल अलग थी.
एलिजाबेथ जो थी वो अपने प्रेजुडिस से घिरी हुई थी और जो मिस्टर डार्सी था उसे अपने सोशल स्टेटस से प्राइड था। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं, बट ओवर टाइम, समय के साथ, दे बोथ हैज डेवलप्ड देमसेल्फ, दे बोथ हैज ओवरकम द थिंग्स दे वर हैविंग। लाइक एलिजाबेथ ने अपने प्रेजुडिस को ओवरकम करा एंड सी एक्नॉलेज कि उनमें भी कुछ गलतियां हैं। नाउ देयर मैरिज इज बिल्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो फर्स्ट मैरिज के बारे में जेन ऑस्टिन बात कर रही हैं वो इन दोनों के मैरिज की बात में कर रही हैं और ये बता रही हैं कि उनका जो मैरिज है ना, दैट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, respect and love, and a perfect marriage should have inclusions of these all things: mutual understanding, respect and love, which often present the foundation of successful and happy union. Now अब that was the first discussion of marriage. अब दूसरा जो discussion है, ऑस्टिन टॉक्स अबाउट जेन बैनेट एंड मिस्टर बिंगली, इन दोनों की रिलेशनशिप और इनके मैरिजेस के बारे में सी डिस्कसेस, वेयर सी रिप्रेजेंट अ सिंपलर एंड वेरी मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड रोमांटिक रिलेशनशिप, जिसमें दोनों ही काइंड है, दोनों ही जेंटल हैं एंड उनका एक बड़ा ही जेन्युइन काइंड ऑफ लव है. बट हाउएवर देयर कोर्टशिप इज ब्रीफली इंटरप्टेड बाय एक्सटर्नल प्रेशर as Darcy and Bingley's sister influenced Bingley to doubt Jane's affection. Despite these, their relationship highlight the importance of genuine feeling and compatibility in marriage. तो देखो ये सेकंड मैरिज का डिस्कशन इन्होंने करा है. सबसे ऑस्टिन के अकॉर्डिंग आइडल मैरिज ऑफ एलिजाबेथ एंड मिस्टर डार्सी, सेकंड है जेन बैनेट एंड मिस्टर बिंगली. इन दोनों का मैरिज को बताया गया है बड़ा ही स्टार्टिंग में अच्छा है, बट ऐसा भी है कि दोनों जो है दूसरों की, जैसे बिंगली को बताया गया यहाँ पे, ये इन्फ्लुएंस हो जाता है दूसरों की बातों में, अपनी सिस्टर्स की और डार्सी की बातों में ये इन्फ्लुएंस होकर ये सोचता है कि जेन इसके लिए सही नहीं है. बट एट द वेरी एंड ही अंडरस्टैंड कि जेन की क्या इंपॉर्टेंस है एंड व्हाट ट्रू और जेन्युइन लव ही वांट्स विच जेन कैन गिव. नाउ अब जो तीसरे मैरिज का डिस्कशन हुआ है यहाँ पे हुआ है शार्लेट लूकस और मिस्टर कॉलिंस का, और कहीं ना कहीं इट प्रोवाइड्स अ प्रैग्मेटिक व्यू ऑफ मैरिज. और शार्लेट जो कि एलिजाबेथ की क्लोज फ्रेंड होती है, वो एक्सेप्ट कर लेती है मिस्टर कॉलिंस के प्रपोजल को, डिस्पाइट वो ना ही इंटेलिजेंस है ना ही कोई चार्म रखता है वो आदमी. लेकिन शार्लेट इसलिए शादी के लिए मान जाती है बिकॉज सी नीड दैट सिक्योरिटी फॉर हर फ्यूचर. उसके पास वेल्थ की कमी होती है एंड ब्यूटी टू अट्रैक्ट अदर सूटर. दैट्स वाई सी गो फॉर मिस्टर कॉलिन. वाइल मिस्टर कॉलिन ना ही इंटेलिजेंट है ना ही चार्मफुल है, बट फिर भी एक सिक्योरिटी के लिए जो ये है एलिजाबेथ की दोस्त शार्लेट, ये मिस्टर कॉलिन से शादी करती है. और ऑस्टिन ने कहीं ना कहीं इनके रिलेशनशिप को यूज करके लिमिटेड ऑप्शन जो वुमेन को अवेलेबल होता है पैट्रियार्कल सोसाइटी में और इवन उनके टाइम पे, उसको क्रिटिसाइज किया है कि किस तरह से वुमेन के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते हैं और एट द एंड उनके पास शादी की ऑप्शन बचती है कि लेट्स गेट मैरिड एंड बी सिक्योर फॉर आवर फ्यूचर. नेक्स्ट इन्होंने ये भी बात करी है कि शार्लेट का जो डिसीजन है वो रिफ्लेक्ट करता है हार्श रियलिटी दैट मेनी वुमेन मैरिजेस वाज ऑफन अ मैटर ऑफ सर्वाइवल रेदर देन हैप्पीनेस. आप इस चीज़ पे ध्यान दो कि किस तरह से इन्होंने इस बात को दिखाई है कि उस टाइम पे जो औरतें थी वो शादी इसलिए करती थी जस्ट फॉर मैटर ऑफ सर्वाइवल, कि मुझे आगे लाइफ मेरी देखभाल कौन करेगा, खुशियों के लिए नहीं, बस जस्ट फॉर सर्वाइवल. नाउ द वेरी फोर्थ मैरिज इज लीडिया बैनेट एंड मिस्टर वीकम. इनको पोर्ट्रे करा गया है द डेंजर ऑफ इम्पल्सिव एंड शैलो रिलेशनशिप. बिल्कुल शैलो, खोखला रिलेशनशिप है इनका. लीडियाज recklessness and vanity lead to her into an elopement with the irresponsible Wickham, forcing her family to intervene and arrange a hasty marriage, and this union lacks mutual respect. अब देखो इसमें लीडिया जो होती है वो घर से इलॉप हो जाती है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से इसके घर के लोगों को डिसरिस्पेक्ट फील करना पड़ता है. तो दिस शोज अ शैलो रिलेशनशिप. और इनका इवन जो यूनियन है ना, दैट जस्ट लैक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दैट लैक लव, दैट एंड इट हाईलाइट द पोटेंशियल कंसिक्वेंसेज ऑफ इमेच्योर डिसीजन एंड लैक ऑफ मोरल गाइडिंग. तो चौथा जो मैरिज है इट डिस्क्राइब दीज थिंग अकॉर्डिंग टू जेन ऑस्टिन, और इन्होंने 4 तरह के मैरिजेस को यहाँ पे डिस्क्राइब करा गया है. और यही डिफरेंट पोर्ट्रेयल से ऑस्टिन हैज critiques the societal norms of her time, and she shows how some marriages are based on convenience, social expectation and financial necessity. So the main thing is here कि Austen is just trying to criticize marriages of that time कि किस तरह से women were not seeing happiness, they were just
डिपेंडेंट ऑन फॉर सर्वाइवल, दे वर मैरिंग फॉर सर्वाइवल, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, समाज मेरी मतलब फैमिली क्या कह रही है उनकी एक्सपेक्टेशन पे, और फिर फाइनेंशियल नेसेसिटी के लिए लोग शादी करते थे। और अल्टीमेटली जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है ये सारे मैरिजेस को एडवोकेट करता है, एंड इट कॉम्बाइन द इमोशनल फुलफिलमेंट विद इक्वालिटी ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, चैलेंजिंग रिजिड सोसाइटल नॉर्म्स ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी। मतलब उस टाइम पे क्या हो रहा है, जेन इज जस्ट क्रिटिसाइजिंग दैट टाइम पीरियड कि मैरिजेस को कैसे व्यू करा जाता था, एंड अकॉर्डिंग टू हर द आइडल मैरिज ऑफ एलिजाबेथ एंड मिस्टर डार्सी। और ये है कंक्लूजन की जो एक्सप्लोरेशन ऑफ मैरिज है, इट रिमेन्स रेलेवेंट इवन टुडे। आज के भी डेट में वी कैन सी मेनी पीपल डू अरेंज मैरिजेस, और आई एम नॉट जस्ट क्रिटिसाइजिंग अरेंज मैरिज, बट मैरिजेस आर देयर इन villages. You can see even girls and women are there, they just marry for societal expectation and just for survival, not for their happiness. Now the second most important topic of this novel is कि किस तरह से एलिजाबेथ का जो कैरेक्टर है थ्रू आउट द नॉवेल डेवलप होता है। तो एलिजाबेथ जो कि हमको पता है कि प्रोटैगनिस्ट हैं, यानी लीड हीरोइन है प्राइड एंड प्रेजुडिस की, और वन ऑफ जेन ऑस्टन मोस्ट बिलव्ड कैरेक्टर भी हैं, और सी इज ऑलवेज सेलिब्रेटेड फॉर हर इंटेलिजेंस, फॉर हर विट एंड इंडिपेंडेंस। थ्रू आउट द नॉवल एलिजाबेथ अंडरगोस उनके मतलब पूरे जैसे ही नॉवल अपने आप में बढ़ता जाता है, हम देखते हैं कि एलिजाबेथ के कैरेक्टर में भी बड़ा ही पर्सनल ग्रोथ आता है। सी बिकेम वेरी डायनेमिक एंड रिलेटेबल कैरेक्टर। ऐसा लगता है कि मैं भी हो सकती हूँ एलिजाबेथ की जगह, जिस तरह से वो डायनेमिक और रिलेटेबल बनती जाती हैं। उनके जर्नी में हमने देखा है सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल मैच्योरिटी सेंट्रल टू द स्टोरी, और ये रिफ्लेक्ट करता है ऑस्टिन के एक्सप्लोरेशन को, ह्यूमन फ्लॉज एंड प्रोसेस ऑफ ओवरकमिंग देम, कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है, हर एक इंसान में फ्लॉज होते हैं, और हाउ जेन ऑस्टिन हैज एक्सप्लोर्ड दिस इन वेरी ब्यूटिफुल मैनर, कि दिस इज हाउ वी हैव अ टाइम, ह्यूमन हैज टाइम फॉर इन द प्रोसेस ऑफ ओवरकमिंग देयर फ्लॉज। जैसा कि हम देख सकते हैं कि नॉवेल के बिल्कुल शुरुआती में एलिजाबेथ को हम इंट्रोडक्शन का देख सकते हैं एज अ कॉन्फिडेंट, एज अ वेरी इंडिपेंडेंट यंग वुमेन, जिसके पास साफ टंग है, आई मीन सी इज़ वेरी विटी एंड स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं, सी इज़ वेरी क्विक ऑल्सो, एंड फ्रॉम द जजमेंट अबाउट अदर्स सी इज़ वेरी क्विक एंड ऑफन बेस्ड ऑन फर्स्ट इम्प्रेशन। ठीक है, और जजमेंट वो करती है फर्स्ट इम्प्रेशन पे, और ये सारी जो इनिशियल है ना एविडेंस हैं वो in her initial perception of Mr. Darcy, whom she sees as arrogant and proud due to his behavior at Merton Ball. तो इन्हीं क्वालिटी की वजह से वो मिस्टर डार्सी को ही स्टार्टिंग में उसे वो अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि ये बड़ा ही एरोगेंट और बड़ा ही प्राउड इंसान है। और हर प्रेजुडिस अगेंस्ट डार्सी इज फर्दर फ्यूल्ड बाय विकम्स चार्मिंग लाइज। और फिर आगे चल के अगर आपने नॉवल पढ़ी होगी तो ये एक और भी बड़ा एक अनदर रीज़न होता है जिसकी वजह से जो एलिजाबेथ है उसके दिमाग में मिस्टर डार्सी को लेके गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं, विच सी रेडली बिलीव्स दैट विदाउट क्वेश्चनिंग, और दीज अर्ली जजमेंट रिवील एलिजाबेथ टेंडेंसी टू रिलाई ऑन। तो देखो, सबसे पहले बताते हैं कि स्टार्टिंग में ना जो एलिजाबेथ है वो अपने कुछ प्रेजुडिस से घिरी होती है, बिना चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरह जाने, बस एक दफ़ा देख के वो उन चीज़ों पे बिलीव करने लगती है और बड़े ही अर्ली जजमेंट दे देती है। और दिस इज thing which has shown that this is her limited understanding of people's true character, कि उसने मिस्टर डार्सी को पूरी तरह नहीं समझा बट थोड़ी बहुत चीज़ें उनके बारे में जानी और उनके लिए एक कोई स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि ये तो इंसान एंगर्ड है और ये अच्छा नहीं है। लेकिन एलिजाबेथ की भी स्टोरी में कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, टर्निंग पॉइंट आता है, और आफ्टर डार्सीज अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल एंड लेटर ही राइट्स टू हर एंड एक्सप्लेन हिज एक्शन, और जो लेटर होता है ना दैट फोर्सेस एलिजाबेथ को वो ट्रुथ दिखाता है कि व्हाट इज द रियल ट्रुथ, और विक्रम ने जो झूठ बोली थी उससे भी दिखाता है कि किस तरह से एंड डार्सीज रोल्स इन सेपरेटिंग जेन एंड बिंगली, मतलब विक्रम ने यही झूठ बोला था ना कि डार्सी ने ही जेन और बिंगली को अलग किया, बट फॉर द फर्स्ट टाइम सी रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन बायसेस एंड रियलाइजेस till this moment I never knew myself, and this moment of self awareness marks the beginning of Elizabeth transformation. So let me explain you कि यहाँ पे ना Elizabeth after the letter, seeing the letter was a time period when Elizabeth जो है she transformed और she knew कि I was wrong, I have just some prejudice towards Mr. Darcy and that was totally wrong. वो जानती हैं एंड लुक बियॉन्ड हर फर्स्ट इम्प्रेशन कि पहले इंप्रेशन में मैंने क्या कर दिया, एंड हाउ आई लुक्ड अ मैन हु वाज not like that at all, and she has evaluated him. So this was the thing
अब फाइनली एलिजाबेथ्स ग्रोइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ डार्सीज ट्रू नेचर एक की एस्पेक्ट है उनके डेवलपमेंट का, कि पहले तो भाई वो फर्स्ट इंप्रेशन में ही अपने जजमेंट्स दे देती थी और लोगों को जज कर लेती थी, बट इट वॉज रॉन्ग. सी अंडरस्टूड दैट वी नीड टू टेक टाइम टू अंडरस्टैंड पीपल, और दैट्स वाई जब उसने लेटर देखा, डार्सी को समझा, उसके ट्रू नेचर को जाना, दैट वॉज अ टाइम व्हेन द डेवलपमेंट इन हर कैरेक्टर केम फाइनली. और स्टार्टिंग में उसने मिस्टर डार्सी को कोल्ड और बड़ा ही अनफीलिंग समझा था, बट जैसे ही वो उसकी काइंडनेस को उसकी बहन जॉर्जिनिया की तरफ देखती है और उसके एफर्ट्स को देखती है कि किस तरह से वो उसकी बहन कोई के स्कैंडल, लीडिया स्कैंडल में भी वो हेल्प कर रहा है, और सी बिगिंस टू सी हिज जेन्युइन क्वालिटी. और ये जो शिफ्ट है ना, द मेन थिंग इज कि इसका जो परसेप्शन चेंज होता है डार्सी को लेके, दैट इज द इवैल्यूएशन ऑफ अ कैरेक्टर. नाउ कमिंग टू द वेरी थर्ड टॉपिक विच इज सोशल क्लास और सोसाइटी का क्या रोल है प्राइड एंड प्रेजुडिस में. तो सोशल क्लास एंड सोसाइटल नॉर्म्स एक बड़ा ही कह सकते हैं सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ऑस्टिन के नॉवल में. ऑस्टिन का जो ये नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडिस में, it has in shaping the character lives and relationship and decision. ये जो नॉवल है, this was set in a time period of early 19th century in England. That was a time period of rigid social hierarchy. मतलब बड़े ही social rigid kind of hierarchy थे कि कौन ऊपर कौन नीचे, kind of social class. और ये जो नॉवल है, it is a critique to this class consciousness कि किस तरह से आप बस क्लास के बेसिस पे we judge people, लोगों की सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन पे. while ये also highlight करता है कि वो इंडिविजुअल जो इस सारे स्ट्रक्चर को नेविगेट करना चाहता है, ही और सी फेस द चैलेंजेस. नाउ लाइन का जो नॉवेल का जो ओपनिंग लाइन है विच इज कि इट इज ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट अ सिंगल मैन इन पोसेशन ऑफ अ गुड फॉर्च्यून मस्ट बी इन अ वांट ऑफ वाइफ. और ये जो है ना कहीं ये टोन, दिस स्टेटमेंट, द होल स्टेटमेंट सेट्स द टोन for what? For role of wealth and class in marriage and society. कि अगर एक इंसान के पास पैसे आ गए तो at that time he just need a wife, a marriage जब पैसे आए. The novel reflect कि किस तरह से social class influence करता है expectation placed on individual, especially women who were often judged based on their family status, wealth and connection. अब देखो, अब हम इसको थोड़े एग्जाम्पल से देखते हैं कि जो एलिजाबेथ बेनेट और मिस्टर डार्सी का रिलेशनशिप है, ये क्या एग्जाम्प्लीफाई करता है. ये एग्जाम्प्लीफाई करता है कि दो सोशल क्लास के बीच में क्या डिफरेंस है. मिस्टर डार्सी जो कि बड़े ही अमीर इंसान हैं और स्टार्टिंग में ऐसा एलिजाबेथ को लगता है कि बड़ा ही प्राउड है और ये वो, जो कि एलिजाबेथ उतनी नहीं है, तो वो चीज़ यहाँ पे दैट सोज. नाउ डार्सी जो कि एक वेल्दी एरिस्टोक्रेट है और वो स्टार्टिंग में एलिजाबेथ को उसके फैमिली सोशल क्लास को देख के ही उसे डिसमिस कर देता है. But his initial proposal is lacked with condescension as he views her background or disadvantage. तो स्टार्टिंग में आपने जब नॉवल पढ़ी होगी तो ये भी देखा होगा कि ये इसने ऐसा बोलता है मिस्टर डार्सी कि मैं तुम्हें प्रपोज तो कर रहा हूँ बट आई नो यू कम फ्रॉम बैकवर्ड सोशल क्लास. एंड दिस सोच दैट कि किस तरह से जेन ऑस्टिन ने यहाँ सोशल क्लास को क्रिटिसाइज करा है कि हाउ पीपल एट दैट टाइम वर जस्ट टू इनटू दिस ऑल थिंग लाइक सोशल क्लास and role of social class in society in marriages. She has shown that. Now the fourth topic which is important for this is use of irony and humor. किस तरह से irony और humor का use करा गया है. So Austen की Pride and Prejudice is forever celebrated for its irony and humor. It has added a depth and a charm to the narrative while offering sharp and social commentary. Austen का जो ये skill है, these literary devices, ये novel को entertaining बनाता है, thought provoking बनाता है और reader ज़्यादा से ज़्यादा engage हो जाते हैं. Now, Austen employ irony to critique. Irony का Austen क्यों इस्तेमाल करती हैं? She always use irony to critique on societal norms and the character flaws. जो भी character में कमियां हैं उसे दिखाने के लिए. Now again we will be seeing here the first line. जब भी आप आंसर लिखना, I will suggest you to mention this line wherever you can. That is, it is truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in a want of wife. ये perfect example है verbal irony का. While it appears to state a fact, it actually mock the obsession with marriage and wealth in society. Like ये तो it's like
कोई फैक्ट को ये स्टेट कर रहा है, बट दिस इज नॉट जस्ट अ फैक्ट, इट इज अ यूज ऑफ आयरनी बाय आवर जेन ऑस्टिन. एंड इसमें सी इज स्मोकिंग व्हाट, सी इज स्मोकिंग ऑब्सेशन, लोगों का ऑब्सेशन शादी और वेल्थ इन सोसाइटी से. और ये जो आयरॉनिक टोन है ना इन वेरी स्टार्टिंग ऑफ द नॉवल, जहां ऑस्टिन ह्यूमरलेसली क्रिटिक करती हैं दी सुपरफिशियल वैल्यूज ऑफ हर टाइम. अब सिचुएशनल आयरनी भी सेंट्रल टू द प्लॉट है. लाइक फॉर एग्जाम्पल मिस्टर डार्सी जो कि स्टार्टिंग में एलिजाबेथ को बोलता है एज अ डिसमिस कर देता है एलिजाबेथ को ये बोल के एज अ टॉलरेबल, लेकिन एट द एंड ही डीपली फॉल इन लव विथ हर. वैसे ही मिस्टर कॉलिन भी जो कि प्रपोज टू एलिजाबेथ एक्सपेक्टिंग ग्रैटिट्यूड इज ह्यूमरलेसली रिजेक्टेड. और ये जो इंस्टांसेस है ना, दीज टू इंस्टांसेस, these shows or highlight the irony and unpredictability of human relationship and flaws in character of perception. So you can see कि how she has used the irony. ह्यूमर भी है नॉवेल में, और ये अराइज होता है कुछ कुछ कैरेक्टर्स के पोर्ट्रेयल से. पर्टिकुलरली अगर हम देखें विद द एग्जैगरेटेड ट्रेट्स ऑफ मिस्टर कॉलिन्स के कैरेक्टर से. फॉर एग्जाम्पल इज अ सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट अम्यूजमेंट ड्यू टू हिज ऑब्सिक्वस बिहेवियर एंड लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. हिज pompous speeches and absurd devotion to Lady Catherine de Bourgh make him comedic figure while also survive as a critique of sycophantic behavior. तो ह्यूमर भी है by introducing little comedy through the character of Mr. Colin. और मिस्टर बैनेट्स ऑब्सेशन विथ मैरिंग ऑफ हर डॉटर प्रोवाइड सोर्स ऑफ ह्यूमर. अब देखो मिस्टर बैनेट्स का जो भी ऑब्सेशन है कि वो अपनी बेटियों की शादी करा दे, वो भी काइंड ऑफ सोर्स ऑफ ह्यूमर भी है. उनका ड्रामेटिक आउटबर्स्ट की शादी करना कितनी ज़रूरी चीज़ है, एंड वेल्दी मैन से शादी करना, एंड दिस ऑल थिंग. सो और फाइनली एलिजाबेथ की जो विट और शार्प ऑब्जर्वेशन है, इस इंटेलेक्चुअल, अब देखो कई तरह की ह्यूमर यहाँ पे यूज हुई है. यहाँ कॉमेडी ह्यूमर और दिस इंटेलेक्चुअल ह्यूमर ऑफ द नॉवल थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ एलिजाबेथ बैनेट, और her playful banter with Darcy and her clever retorts to character like Lady Catherine. So these are the use of irony in her novel. Now through irony and humor, Austen ना ही हमें केवल इंटरटेन कर रही है, इंटरटेन तो कर रही हैं हालांकि, बट वो क्रिटिसाइज कर रही हैं सोशल कन्वेंशंस को. हर एक कैरेक्टर में जो ना फ्लॉज हैं उनके टाइम में, कि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमियां हैं, उसे सी इज क्रिटिसाइजिंग. उनका जो एबिलिटी है टू बैलेंस दिस लाइट हार्टेडनेस विथ सीरियस कॉमेंट्री, this is something which make Pride and Prejudice a masterpiece of satire and timeless exploration of human nature. So you can just mention this all thing while writing your answer. You do not have to write a summary. Again, I'm telling you, while you will write summary, you will not get marks. Please be the one who observes little things. You are a literature student, and I am suggesting you try to be observer one and write answer. Finding this all hidden truth behind the character and behind everything. Now coming to the very fifth point, which is importance of first impression. Pride and Prejudice में first impression का क्या important है. एक थीम है फर्स्ट इंप्रेशन का भी, जो कि इंट्रिकेटली विवन है प्राइड एंड प्रेजुडिस में. और नॉवल जैसे ही शुरुआत होता है, और इसका इफ़ यू डोंट नो लेट मी टेल यू, प्राइड एंड प्रेजुडिस का ओरिजिनल टाइटल वाज फर्स्ट इंप्रेशन. और जेन ऑस्टन ये एक्सप्लोर करती हैं कि किस तरह से इनिशियल जो स्टार्टिंग के जजमेंट होते हैं, वो एवरी टाइम we judge a person just initially, but maybe often of the time they become superficial or flawed. Influence relationship and perception throughout the story. और आप जब किसी इंसान को ना अच्छे से जानोगे, देन यू विल नो अबाउट हिम और हर. जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल एलिजाबेथ बैनेट और मिस्टर डार्सी का ही लेके कर सकते हैं. इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन कैसे पड़ा, जैसे कि हमने देखा कि एलिजाबेथ जो है इनिशियली डार्सी को जज कर लेती है कि ये बड़ा ही एरोगेंट, बड़ा ही अनकाइंड इंसान है, इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है. वो जो पार्टी में वो लोग गए थे, और इनकी एलिजाबेथ की जो ये सारी प्रेजुडिस है और भी बढ़ जाती है जब विक्रम इन सारे झूठ में कहीं ना कहीं और चीज़ों को बढ़ा देता है. और इस सब के बाद एलिजाबेथ टोटली ये बिलीव करती है कि डार्सी एक अच्छा कैरेक्टर नहीं है, उसे नेगेटिवली देखने लगती है. एंड बट डार्सी इन टर्न फॉर्म्स एन अर्ली इम्प्रेशन ऑफ एलिजाबेथ एज अ, और फिर डार्सी भी इनिशियली एलिजाबेथ को सोचता है कि ये टॉलरेबल है, और बीनीथ हिज नोटिस ड्यू टू हर लोअर ये बोलता है कि ये लोअर सोशल स्टेटस से काम करती है. और ये सारे जो अर्ली जजमेंट थे ना, दीज वर समथिंग दे हैव क्रिएटेड अ बैरियर्स इन सो देम बिटवीन देम. ठीक है.
बट एलिजाबेथ का टर्निंग पॉइंट आता है जब उन्हें डार्सी का लेटर मिलता है. दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि उनका टर्निंग पॉइंट तभी आता है जब एलिजाबेथ को लेटर मिलता है मिस्टर डार्सी का. आफ्टर दैट लेटर प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल हियर एंड देन Elizabeth knew the real truth, what it is, and कि डार्सी वॉज नॉट बिहाइंड द एक्शन रिगार्डिंग जेन एंड बिंगलिंग के बीच में जो भी हुआ उसके पीछे डार्सी नहीं था. और दिस वॉज अ मोमेंट जब एलिजाबेथ हैव टू कन्फ्रंट, उन्हें ये जानना पड़ता है कि मेरे ही कुछ बायसेस थे, मेरे ही कुछ इनिशियल इंप्रेशंस थे जो कि गलत थे. वैसे ही डार्सी के साथ होता है. डार्सी भी समय के साथ एलिजाबेथ को एडमायर करने लगता है, उनके इंटेलिजेंस, उनके स्ट्रेंथ को, और that leads to him to overcome his pride in reevaluating his feeling. और their journey from misunderstanding to mutual respect underscores and Austen messes that कि ऑस्टन का यही मैसेज है कि पहला इम्प्रेशन काइंड ऑफ मिसलीडिंग हो सकता है, मस्ट बी रीअसेस्ड. मतलब आपको कभी भी किसी को पहली ही नज़र से जज नहीं करना चाहिए. लेट देम गिव टाइम, टॉक टू देम, नो देम, देन आफ्टर यू विल नो द रियल ट्रूथ बिहाइंड एवरीथिंग. सो अदर कैरेक्टर्स भी नॉवल में हैं, जैसे इन ऑल्सो रिफ्लेक्ट द थीम, जैसे कि जेन बैनेट्स रिजर्व्ड नेचर लीड्स टू अदर्स टू अंडरस्टिमेट हर फीलिंग्स फॉर बिंगली, कॉजिंग अ टेम्पररी ऑब्स्टिकल इन देयर रिलेशनशिप. ऐसे ही विकम के साथ भी हुआ, जैसे कि विकम चार्म्स इनिशियली मास्क हिज डिसऑनेस्टी एंड सेल्फिशनेस, हाईलाइटिंग अ डेंजर ऑफ जजिंग थ्रू बाय अपीयरेंस. सो ये एग्जाम्पल को यूज करके ऑस्टन इज ऑल्सो critics providing a critique to reliance and superficial judgment. और ये emphasize करती हैं कि डीपर अंडरस्टैंडिंग, एक किसी भी ह्यूमन रिलेशन में डीपर अंडरस्टैंडिंग होना कितना इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगेन आई एम टेलिंग यू जस्ट टू नॉट राइट समरी. Try to be little observing one, and it is important to know the deep thing behind everything. As in yesterday videos or New Province of Writing of Ain Call, I have talked what novel actually is. I mean, Ain Call has suggested us कि केवल आपको just you don't have to read like a story. You need to find that individual, societal and universal relation between character and what it is going to provide you. Thank you for watching this video. If you like or dislike anything about this video, please let me know in the comment section, and I'll be thankful to know that.